say close to the war because when they violated the airspace, undertook an aggression, we went for response. Did handing back the Indian Air Force fighter pilot, did that help ease tensions? No, it is up to India that whether they take that peace gesture and move forward towards de-escalation or continue the agenda that they have. How would you judge India's posture at the moment on the other side of the line of control? Along the line of control, we are eyeballs to eyeballs. So there is presence of troops for decades. But post the Indian aggression and our response, the safeguards have been taken by both sides. Increase in troop numbers on both sides? Because it is natural as part of military planning that when the situation gets hot, there are safeguards. Those safeguards are in place on both sides. In this eyeball-to-eyeball, high alert situation, how possible is it for things to escalate again? We feel that now the ball is in the Indian court. Should they decide to escalate more, the situation will go bad. India claims that on Tuesday last week it crossed into your airspace and bombed what it calls essentially a terrorist training camp. Not even a single brick has been found there if there was an infrastructure, and not even a single dead body found there. Their claims are false, and I believe lately there is an announcement from their side also that they cannot claim any casualty. Is it correct that Pakistan is now going to take action against Jaish-e-Mohammed, the group that claimed responsibility for that attack in India 2.5 weeks ago that precipitated the current tension? First of all, that claim has not been made from within Pakistan because Jaish-e-Mohammed does not exist in Pakistan. It has been prescribed by United Nations also and Pakistan also. Secondly, we are not doing anything under anybody's pressure. So does this mean, in light of what's happened, without international pressure, but in light of what's happened over the past few weeks, that an increased effort will take place to root out any groups that might destabilize the situation in Kashmir? For sure. Anybody who operates from Pakistan, we feel that it is not in the interest of Pakistan. Instead of blaming Pakistan, it is time that the world should assist Pakistan, facilitate Pakistan in getting rid of such organizations. In your opinion, why did that attack in the middle of February against Indian forces happen that triggered all this tension? The answer to this question lies in the United Nations Human Rights Commission report issued lately. If you suppress the local population to the extent that they are being killed, they are being raped, they are being given pellet guns, so there is a natural reaction. This is what you're saying that Indian forces are doing? Yes, the Indian occupation forces, and this is not that I am saying, it is there in the United Nations Human Rights Commission report. So the world has to see that what is forcing the Kashmiri youth to go towards violence. So instead of looking towards a framed allegation for this incident, India also has to look inward that why these incidents are happening. We have to move towards resolution of Kashmir because this issue, Kashmir, is a flashpoint for the peace in region. DGISPR ने CNN से गुफ्तगू की है जिनका कहना था कि मसला कश्मीर खित्ते के इस्तेहकाम के लिए फ्लैश पॉइंट बन चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो इंचार्ज सलमान अली अवान और सीनियर तजियाकार एहतशामुल हक साहब। सलमान अली अवान, आप बताइएगा मजीद इस गुफ्तगू में क्या कहना था DGISPR का? जी बिल्कुल, इंटरव्यू में एक तरफ तो मसला कश्मीर जो है उसको उजागर किया और उस हवाले से जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो पेश किया कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता पाकिस्तान और भारत के दरमियान, दोनों के दरमियान कशीदगी जो है वो जारी रहेगी। इसी तरह उन्होंने की तरफ से बालाकोट हमले के बारे में लगाए गए जो दावे किए। ठीक, सलमान अली अवान से मजीद भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार एहतशामुल हक साहब। एहतशामुल हक साहब, बताएगा एक मरतबा फिर DGISPR ने CNN से गुफ्तगू करते हुए मसला कश्मीर को उठाया है और उसके साथ साथ जो भारतीय प्रोपेगेंडा है उस पर भी बात की है और जो बालाकोट में दावा किया गया था भारत की जानिब से उसको भी रद्द कर दिया है। देखिए जी, पुलवामा को देखने के बाद और फिर बालाकोट, उसके बाद जो पाकिस्तान ने टिट फॉर टैट एक जबरदस्त जवाब दिया, 2 तैयारे गिराए गए, एक उनका पायलट गिरफ्तार किया गया, एक के बारे में भी कंट्रोवर्सी चल रही है, कुछ कहते हैं कुछ कहते नहीं है, किसी और नेशनलिटी का है, देखने वाली बात ही है।
अब देखें इस सारे वाक़े को मेरी नज़र में तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में हो गया। जिस तरीके से कश्मीर का इशू इंटरनेशनलाइज हुआ है बैनुल-अक़वामी तौर पे, आज आप देख लें न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट, खलीज टाइम, गार्डियन, टाइम्स ऑफ ओमान और दुनिया के सारे बड़े बड़े अखबार जो है ना वो आज लिख रहे हैं। इकोनॉमिस्ट ने इसके ऊपर लिखा कि जी ये 70 साल का एक डिस्प्यूटेड एक इशू है जिसकी रेजोल्यूशन के बगैर ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट जो है ना रीजन ये कभी भी जो है ना ये खतरे से बाहर नहीं जा सकता। तो मेरा ख्याल है आज जिस तरह DGISPR ने बड़े वाज़े तौर पे कोई लफ्ज़ चबाए बगैर, आपको याद होगा मुशर्रफ साहब के ज़माने में कश्मीर का नाम लेना एक किस्म का वो जुर्म हो गया था। जब उन्होंने ये कॉम्पोजिट डायलॉग का सिलसिला हिंदुस्तान के साथ शुरू किया था 2004 के बाद, तो ये कश्मीर जो है ना ये निकल ही गया था, इस पर बात ही नहीं होती थी। और फिर ताल्लुकात थोड़े ठीक हुए, लेकिन हमने देखा कि नतीजतन क्या हुआ, वो सेपरेशन कश्मीरियों के खिलाफ बहुत ज़्यादा हुई। और फिर ये 3 साल पहले जो हम देखते हैं बुरहान वानी जो एक शहीद हुआ वहाँ का लोकल फ्रीडम फाइटर, उसके बाद से ये इंडिजिनस मूवमेंट जो है ना ये इंतहा पे पहुंच गई है। आज सारी दुनिया ये कह रही है कि जी ह्यूमन राइट वायलेशन की इंतहा हो गई है। और फिर एक दबाव सारी दुनिया की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता ये भी आ रहा है कि जहाँ पे ईसाई कम्युनिटी होती है वहाँ पे उनकी आज़ादी दिलवा दी जाती है। ईस्ट तिमोर जिस तरीके से आपने देखा, इंडोनेशिया वहाँ पे ईसाई आबादी थी उसको आज़ाद किया गया। फिर आप देख लें साउथ सूडान, वहाँ पे सूडान में जो ईसाई कम्युनिटी ज़्यादा थी तो उसको आज़ाद करवाया गया। लेकिन पैलेस्टाइन हो, कश्मीर हो, और फिर उसके बाद आपने देखा जो आपने 90s में आपने देखा कि जिस तरीके से यूरोप में हुआ, बोस्निया को कत्लेआम कितना हुआ वहाँ पे, किस तरह उनको बाद में फाइनली उनको आज़ादी दी गई। तो मेरा ख्याल है जी आज हम जब ये बात कर रहे होते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, लोग एक ज़माना था कहते थे कश्मीर को भूल जाएं, अब कश्मीर को भूलना मुमकिन नहीं है। अब वाकई इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर चाहती है पीस हो, दुनिया में अमन हो, और ये कहा जा रहा है कि इस रीजन में अगर पीस नहीं होता तो अल्टीमेटली ये पूरी दुनिया के लिए एक खतरा की अलामत बन जाएगा। तो मेरा ख्याल है अच्छी बात है, आज CNN भी कह रहा है, बाकी लोग भी कह रहे हैं। बिल्कुल। तो इत्तेशाम साहब जो हालात अब बन रहे हैं आप क्या समझते हैं कि मसला कश्मीर हल होने के करीब है, और जो आलमी बरादरी का प्रेशर है, जिस तरीके से आपने कहा कि अब मीडिया में भी लिखा जा रहा है, आलमी मीडिया में, तो अब भारत क्या घुटने टेक सकता है? देखिए नहीं, भारत का इस वक्त 2 इशू चल रहे हैं। भारत का एक बड़ा इशू चल रहा है कि इस वक्त उनकी 12 से ज़्यादा 13 इंसर्जेंसीज चल रही हैं, चाहे असम है, चाहे माओइस्ट है, चाहे सिख मिलिटेंट है, चाहे और कम्युनिटी के लोग हैं वो जिस तरीके से। तो हिंदुस्तान की लीडरशिप ये समझती है कि अगर आज कश्मीर को आज़ाद कर दिया जाता है तो बाकी जगहों पे भी आज़ादी की आवाज़ें आएंगी। दूसरा बड़ा मसला इस वक्त यह है कि जो कश्मीर के ऊपर हिंदुस्तान ने जो अपना एक 35F जो है ना 35A एक इंसर्ट किया हुआ है उसमें अपने आइन में, जिसका मतलब है कि एक स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है, जिसको वो थ्रेट कर रहे हैं कि हम ये स्पेशल स्टेटस जो है ना ख़त्म करके 29 रियासतें 30वीं रियासत कश्मीर को बना देंगे। दूसरा उनका है जी 370 एक आर्टिकल जो इंटीग्रल पार्ट कहता है कश्मीर को अपना। इन दोनों में तब्दीली लाने के लिए आज हिंदुस्तान में आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। और हिंदुस्तान से लोग कह रहे हैं कि भाई आप भले आज़ादी ना दें, लेकिन कम से कम आप जो उनके ह्यूमन राइट्स वायलेशन है वो ख़त्म करें, जो एक ग्रेटर ऑटोनॉमी दी जा सकती है उनको दें, उनको मेन स्ट्रीम पे कश्मीरियों को लाएं। सबसे पहली तो बात है कि जो वायलेंस है, कत्लो गारत है, इसको बंद करें। हिंदुस्तान नहीं बंद कर रहा। बहरहाल अच्छी बात है कि अब इतना शदीद दबाव पूरी दुनिया इस वक्त कह रही है कि इसको खत्म होना चाहिए। और लेटेस्ट न्यूयॉर्क टाइम का आर्टिकल आपने देखा जो 3 हफ्ते पहले लिखा गया था, आर्टिकल भी अब सामने आ रहे हैं मसला कश्मीर के हवाले से। इत्तेशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सलमान अली अवान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान अली अवान, गुफ्तगू की है CNN से DGISPR ने, ये पूरी गुफ्तगू थी क्या, बताइएगा। बिल्कुल, इसमें DGISPR ने एक तरफ तो जो भारत के इल्जामात हैं बालाकोट हमले के हवाले से उनको रद्द किया, उनको मुस्तरद किया, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में कालेधन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उसको भी उजागर किया। और इसके साथ ही जो उनका सबसे अहम नुकता था वो मसला कश्मीर था, जिस पर उन्होंने रोशनी डाली और कहा कि मसला कश्मीर जो है हालिया कशीदगी के वाक़यात से साबित होता है कि जब तक ये मामला हल नहीं होगा, ये मसला जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक फ्लैश पॉइंट की हैसियत रखता है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान किसी भी वक्त इस मसले की वजह से सूरत हाल जो है वो एस्केलेशन के ऐसे लेवल पर जा सकती है जो फिर किसी के काबू में नहीं रहेगा। और इसके साथ ही उन्होंने मकबूजा कश्मीर में भारत की जो अफवाज हैं, भारत की जो काबिज अफवाज हैं, उनकी जानिब पे
इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं उनको उजागर किया। और उनका यही कहना था कि मकबूजा कश्मीर में एक तरफ तो खवातीन की इस्मत दरी की जा रही है, कश्मीरियों को रियासती जबर का निशाना बनाया जा रहा है, और इसके साथ ही पैलेट गन्स का इस्तेमाल करके लोगों से उनकी बिनाई छीनी जा रही है, आंखें छीनी जा रही है। और ये सब कुछ पाकिस्तान या पाकिस्तान की फौज नहीं कह रही, बल्कि ये सब कुछ जो है UNHCR की जो हालिया रिपोर्ट है उसमें बड़े वाज़ेह और दो टोक अल्फाज के अंदर लिखा हुआ है, दर्ज है, जिसे कहीं पर जुटलाया नहीं जा सकता। तो उनका यही कहना था कि भारत जब ऐसे हथकंडे अपनाएगा जहां पर जब मकबूजा कश्मीर में जुल्म और जबर का माहौल होगा, तो ऐसे में कश्मीरी जो है उनका रद्दअमल तो सामने आएगा। कश्मीरी अवाम जो है वो अपनी आज़ादी के लिए उठ खड़े होंगे, और जैसे कि नजर आ रहा है कि कश्मीरी अवाम जो है वो भारत की सिर्फ और सिर्फ आज़ादी चाहते हैं। तो DGISPR ने एक तरफ तो कश्मीर का मसला जो है वो उजागर किया, और बालाकोट हमले के हवाले से जो भारत का मौक़िफ़ सामने आया है उसके हवाले से DGISPR का कहना था कि बालाकोट हमले में जो इंडिया दावा करता है कि हमला किया गया, सर्जिकल स्ट्राइक की गई और उसके मिराज तैयारों ने बमबारी की, तो DGISPR का कहना था कि बालाकोट में एक ईंट भी नहीं उखड़ी, बालाकोट में किसी जगह पे किसी मकान को, किसी इमारत को कहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और ये दुनिया जो है देख सकती है। और आज भी रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट जारी की है, जो सैटेलाइट इमेजेस मौसूल हुए उनका तज्जिया किया है माहिरीन ने, और यही बात सामने आई कि बालाकोट में जिस मकाम पर भारत की जानिब से निशाना बनाए जाने की बात की जा रही थी, वहां पर किसी इमारत को, किसी दरख्त को, पूरा इलाका जो है कहीं पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हाँ, ये जरूर है जो पाकिस्तान आर्मी का मौक़िफ़ है वो जरूर साबित होता है कि भारतीय तैयारों ने अपना वेपन पेलोड जो है खुले इलाके में, जंगल में गिराया था, जहां पर कुछ दरख्तों को जो है वो नुकसान पहुंचा है। तो मजमूई तौर पर DGISPR ने अपनी गुफ्तगू में तमाम जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसाइल हैं उनका अहाता किया और उनको उजागर किया, और उनका एट द एंड यही कहना था कि पाकिस्तान ने बॉल जो है इंडिया के कोर्ट में फेंक दी है। पाकिस्तान की तरफ से अभिनंदन की रिहाई जो है वो पाकिस्तान का एक पीसफुल जेस्चर है। अब ये भारत पर मुनहसर है कि वो अपनी जो भारत जो है दाखिली फवाइद के लिए भारतीय हुकूमत जो है, जैसे कि सब जानते हैं कि भारत में आम इंतखाबात होने वाले हैं, तो अब ये भारत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से पाकिस्तान का जो पीस जेस्चर है उसका मुस्बत रद्दअमल जाहिर करता है, या फिर अपने दाखिली फवाइद के उसूल के लिए एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से जो अमन के इकदाम हैं, अमन और दोस्ती का हाथ है, वो मुस्तरद कर देता है। जी ठीक, सलमान अली अवान हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका। एहतशामुल हक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था, आपका भी बहुत शुक्रिया।